پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے اسے بغیر تحقیق کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے نظر آتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ شہید فوجی جوان مہیش کی فوجی اعزازات کے ساتھ آخری رسومات۔ ریاستی گورنر، ریاستی وزیر پرشانت ریڈی، اسمبلی اسپیکر پوچرام، MLC کے کویتا، ضلع کلیکٹر و پولیس کمشنر و ضلع کے عوام نے پیش کیا خراج عقیدت۔ مجاہد آزادی آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر یوم تعلیم و یوم اقلیت تقریب کا ضلع کے کسی دفتر پر سرکاری طور پر اہتمام نہیں۔ مسلم سیاسی پارٹیوں نے بھی کیا نظر انداز، افسوس صد افسوس۔ سابقہ کوآپشن ممبر سید قیصر نے ضلع محکمہ تعلیم میں اردو کے ساتھ ہو رہی ناانصافی و دھاندلیوں کو منظر عام پر آتے ہوئے DEO سے کیا جواب طلب و کارروائی کا مطالبہ۔ جماعت داؤ میں 10 GPA حاصل کرنے والے آرمور بوائز اسکول کے طلباء کو ریاستی الیکشن کمشنر پارتھا سارتھی و ضلع کلیکٹر نارائن ریڈی نے دی مبارکباد۔ وقف پروٹیکشن کمیٹی کو ایک اور کامیابی، خلیل سرائے وقف اراضی پر قابضین کو وقف بورڈ سے نوٹس جاری۔ ضلع کانگریس مائنورٹی سیل کی جانب سے مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش تقریب کا انعقاد و صحافیوں کو دی گئی تہنیت۔ رخ کریں تفصیل کی جانب۔ قومی یوم تعلیم کے موقع پر محکمہ تعلیم کی جانب سے تقریب کا انعقاد نہیں۔ مجاہد آزادی و ملک کے پہلے وزیر تعلیم کی یوم پیدائش کے موقع پر دفتر کلکٹریٹ پر کوئی اعزاز نہیں۔ یوم اقلیت کے موقع پر محکمہ اقلیتی بہبود پر اقلیتوں کے لیے کسی طرح کی اسکیم کا انعقاد نہیں، نہ ہی اقتدار میں موجود قائدین کی جانب سے مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش تقریب پر خراج کی پیشکش، افسوس صد افسوس۔ آج ملک کے عظیم مجاہد آزادی و آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کا دن ہے، جنہوں نے بحیثیت مجاہد آزادی ملک کو انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرنے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اور پھر بحیثیت وزیر تعلیم ہندوستان کے عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے وقت سے آگے کی اقدامات کی، اور ہمارے آبا و اجداد نے بھی انہی کے طرز تعلیم حاصل کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ آج ان کی ہی تعلیمی پالیسیز کے سبب تعلیمی یافتہ بنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ان کی یوم پیدائش کو اس طرح سے بھلا دیا گیا جیسے کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہ کیا ہو۔ ان سب کی وجہ قوم کی کاہلیت، غافل و بزدل قائدین اور بڑھتی ہوئی مذہبی نفرت ہے، جس سے ابھر کر آنا ہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شہید فوجی جوان مہیش کی فوجی اعزازات کے ساتھ آخری رسومات کی ادائیگی۔ ریاستی گورنر، ریاستی وزیر، MLC کے کویتا، نظام آباد کلیکٹر، پولیس کمشنر و ضلع کی عوام کا خراج عقیدت۔ جموں کشمیر کے کپوارہ میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے فوجی جوان مہیشور عرف مہیش کی کل رات ڈیڈگل ایئرپورٹ لایا گیا، جہاں پر ریاستی گورنر تمل سائی سوندر راجن، ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی، MLC کے کویتا، سابق رکن پارلیمنٹ نظام آباد مدھو گوڑ یاشکی نے ایئرپورٹ پہنچ کر شہید فوجی کی جسد خاکی حاصل کیا اور خراج عقیدت پیش کی گئی، اور یہاں سے ایمبولینس کے ذریعے ان کی آبائی مقام ضلع نظام آباد کے ویلپور منڈل کے کومن پلی لایا گیا اور عوام کے دیدار کے لیے ناش کو رکھا گیا۔
जहां पर जिला निजामाबाद के अलावा जगतियाल निर्मल जिले से सैकड़ों अफराद पहुंचकर शहीद फौजी जवान का दीदार करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया, सदर नशीन जिला परिषद विठल राव के अलावा जिला कांग्रेस के सदर मानला मोहन रेड्डी, साबिक रुकने असम्बली बालकोंडा अनिल कुमार, टीआरएस कैद तारिक अंसारी, बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया के अलावा दीगर कई अहम कायदीन ने आज कोमनपल्ली पहुंचकर इनके आखिरी रसूमात में शिरकत की। शहीद फौजी नौजवान महेश्वर की आखिरी रसूमात फौजी इजाजत के साथ अंजाम दी गई और फौजी रसूमात के तहत इनकी मैयत पर से हिंदुस्तानी परचम को निकालते हुए इनकी अहलिया के हवाले किया गया। वाज़ेह है कि महेश्वर की शादी 2 साल कबल फौजी ओहदेदार की दख्तर के साथ हुई थी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में ये अपने आबाई मुकाम आए हुए थे और इस साल दिसंबर में छुट्टी पर आने वाले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदों के साथ हुई फायरिंग में ये हलाक हो गए, जिस पर इनकी बीवी को बेहद गम है। रियासती हुकूमत ने शहीद फौजी जवान के अफराद खानदान को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया, खानदान में एक मुलाजिमत और रहायशी मकान के लिए अराजी फराहम करने का ऐलान किया। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बिहार की शानदार कामयाबी पर डिप्टी मेयर इद्रीस खान, मजलिस फ्लोर लीडर शकील फाजिल के हमरा मजलिसी वफद के सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात, वो शानदार कामयाबी पर दी मुबारकबाद। डिप्टी मेयर इद्रीस खान की क़ियादत में आज मजलिस वफद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और बिहार में 5 उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर इन्होंने मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में भी मजलिस इसी तरह कामयाब होने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सदर मजलिसी ने भी इनकी जानिब से बिहार असम्बली इंतखाबी तशहीरी मुहिम में शिरकत करते हुए की गई सख्त मेहनत पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा मजलिसी फ्लोर लीडर शकील फाजिल, कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज मौजूद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, आज़ादी हिंद के लिए वज़ीर तालीम और कौमी रहनुमा। अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद आज़ाद, पैदाइश 11 नवंबर 1888, वफात 22 फरवरी 1958, आज़ादी हिंद के पहले वज़ीर तालीम और कौमी रहनुमा थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोइनुद्दीन अहमद था। इनके वालिद मोहम्मद खैरुद्दीन उन्हें फिरोज़ बक़त तारिकी नाम कहकर पुकारते थे। मौलाना 1888 में मक्का मुअज़्ज़िमा में पैदा हुए। वालदा का ताल्लुक़ मदीना से था। सिलसिला नस्ब शेख जमालुद्दीन अफ़गानी से मिलता है, जो अकबर आज़म के अहद में हिंदुस्तान आए और यही मुस्तक़बिल सकूनत इख्तियार कर ली। 1857 की जंग आज़ादी में आज़ाद के वालिद को हिंदुस्तान से हिजरत करनी पड़ गई। साल अरब में रहे। मौलाना का बचपन मक्का मुअज़्ज़िमा और मदीना में गुजरा। इब्तिदाई तालीम वालिद से हासिल की, फिर जामा अज़हर चले गए। 14 साल की उम्र में उलूम मशरिक़ी का तमाम निसाब मुकम्मल कर लिया था। मौलाना की ज़हनी सलाहियतों का अंदाज़ा इससे होता है कि इन्होंने 15 साल की उम्र में माहवार जरीदल सानुल सदक़ जारी किया, जिसकी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी बड़ी तारीफ़ की। 1914 में अल हलाल निकला। ये अपनी तर्ज का पहला पर्चा था। तरक्की पसंद सियासी तख़ीलात और अक्ल पर पूरी उतरने वाली मजहबी हिदायत का गहवारा और बुलंद पाए
संजीदा अदब का नमूना था। मौलाना बैक वक्त, उम्दा, इंशा परवाज, जादू बयान, खतीब, बेमिसाल सहाफ़ी और एक बेहतरीन मुफसिर थे। अगरचा मौलाना सियासी मुसल्लिक में ऑल इंडिया कांग्रेस के हमवार थे, लेकिन इनके दिल में मुसलमानों का दर्द ज़रूर था। यही वजह थी कि तकसीम के बाद जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की विकार को सदमा पहुंचने का अंदेशा हुआ तो मौलाना आगे बढ़े और इसके विकार को ठेस पहुंचाने से बचा लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। इनके यौम पैदाइश 11 नवंबर 1888 को हिंदुस्तान में कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद को 20वीं सदी की बेहतरीन उर्दू मुसन्निफ़ीन में से एक समझा जाता है। मौलाना आज़ाद ने कई किताबें लिखी, जिनमें गुबार क़ातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, अंग्रेज़ी तज़किया, तर्जुमान, कुरान सेर फहरिस्त थे। इसके अलावा अलहाल नामी उर्दू का मुफ्त रोज़ा अखबार जुलाई 1912 में कोलकाता से जारी किया। गुबार क़ातिर मौलाना आज़ाद के ख़ुतूत का मजमुआ है। ये तमाम ख़ुतूत नवाब सदर यार जंग मौलाना हबीबुर रहमान खान शरवानी रईस बेगमपुर ज़िला अलीगढ़ के नाम लिखे गए। ये ख़ुतूत किला अहमदनगर में 1942 था 1945 के दरमियान ज़माना असरी में लिखे गए। मौलाना की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कैद व हिंद में गुजारा, मगर इस बार किला अहमदनगर की असीरी हर बार से सख्त थी, क्योंकि इस बार ना किसी से मुलाकात की इजाज़त थी और ना किसी से ख़त किताबत करने की। इसलिए मौलाना ने दिल का गुबार लिखने का एक रास्ता ढूंढ निकाला और ख़ुतूत लिखकर अपने पास महफूज करना शुरू कर दिए। मौलाना ने खुद इसी मुनासिबत से इन ख़ुतूत गुबार क़ातिर का नाम दिया है और ख़त गुबार मन अस्त इन गुबार क़ातिर से इसे ताबीर किया है। एक ख़त में शरवानी साहब को मुखातिब करके फरमाते हैं, जानता हूँ कि मेरी सदाएं आप तक नहीं पहुँच सकती, ताहम तबानाला सगंज को क्या करूँ कि फरियाद विश्वन के बगैर रह नहीं सकती। आप सुन रहे हो या ना रहे हो, मेरी ज़ुक़ मुखातिब के लिए ये ख्याल बस करता है कि रोए सकन आपकी तरफ है। उर्दू का मुफ्त रोज़ा अखबार जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जुलाई 1912 में कोलकाता से जारी किया। नायब में छपता था और तस्वीर से मज़ीन होता था। असरी और अरबी अखबारात से भी खबरें तर्जुमा करके शाये की जाती थी। मज़हब, सियासियात, माशियात, नफ्सियात, जोग्राफिया, तारीख़, अदब और हालात क़ातिरा पर मियारी मज़ामीन और फ़ीचर छपते। तहरीकी खिलाफत और रसूल नाफरमानी का ज़बरदस्त मुबलिग व मुईद था। अल हलाल प्रेस से 2000 रुपये की ज़मानत तलब कर ली। इसके बाद 18 नवंबर 1914 को मज़ीद 10,000 रुपये की ज़मानत तलब कर ली गई, जो जमा ना कराई जा सकी और अखबार बंद हो गए। 1927 में अल हलाल फिर निकला, मगर सिर्फ 6 माह के लिए। पहली जंग अजीम के दौरान इनकी अशात 25,000 तक पहुंच गई थी। उर्दू ज़ुबान का ये पहला बातस्वीर सियासी पर्चा था, जो अपनी आला तज़ाइन व तरतीब, ठोस मकालों और तस्वीर के लिहाज से सहाफ़ती टेक्निक में इनकलाब आफरीन तब्दीलियाँ लाया। जिला महकमा तालीम में उर्दू जुबान के साथ हो रही नाइंसाफियों व उर्दू मीडियम स्कूल्स में तेलुगु जुबान जानने वाले असातिज़ा के तकर्रात का RTI के जरिए साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने किया पर्दाफाश। DEO से मुलाकात करते हुए कार्रवाई का किया मुतालबा। आज साबिका मजलिसी कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद से मुलाकात की और इनके महकमे में हुई धांधलियों व उर्दू के साथ हुए नाइंसाफियों से वाकिफ करवाते हुए RTI के तहत हासिल करदा मवाद की बुनियाद पर कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर DEO की जानिब से कोई साबित जवाब ना मिलने पर इन्होंने बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर सैयद कैसर ने कहा कि शहर के उर्दू मीडियम स्कूल, सरकारी हाई स्कूल धारूगली और एड़पल्ली सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल पर उर्दू जुबान जानने वाले फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए निश्चित होने के बावजूद यहाँ पर तेलुगु जुबान जानने वाले टीचर्स को मुकर्रर किया गया, जिसके सबब उर्दू जुबान जानने वाले 2 हकदार अपने हक से महरूम हो गए, जिस पर इन्होंने कार्रवाई का मुतालबा किया और इन निश्चितों पर सिर्फ उर्दू जुबान जानने वाले ही असातिज़ा को
मुकर्रर करने का मुतालबा किया और इसी तरह की हरकत करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। వేకెంట్ లేకుంటే మీరు వేకెంట్ ఎదురు పంపిస్తారు అక్కడ రిపోర్ట్ ఫిల్ ఉంది అక్కడ తెలుగు ఉర్దూలో వచ్చేస్తారు ఉర్దూలో తెలుగు వచ్చేస్తారు సార్ ప్లీజ్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ లేకపోతే నేను ఇక్కడ నేను మా వాళ్ళకు మా ఉర్దూ వాళ్ళకు ఏదైనా इनके उर्दू स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स के अंदर तेलुगु पीटीज को ट्रांसफ़र कर कर और उस वैकेंट प्लेस को फिलअप किया जा रहा है। देखिए कैसी साजिश हो रही है, यानी एक तो तेलुगु स्कूल्स के पीटीज वहाँ वैकेंट बताएंगे और यहाँ पर उर्दू स्कूल्स के जो वैकेंट थे उसमें तेलुगु को लगा दे के तो ये वैकेंट को निकाल दिया जाएगा। तो दो तरफ से हमारे को मारा खा रहे हैं हम लोग। ये किस तरह से इंजस्टिस है ये? तो मैं वाज़ेह तौर पर आज यहाँ के डीओ साहब से मुलाकात किया। मैं बताया ख़ास तौर से कि दो जगह, एक वाटर टैंक स्कूल निज़ामाबाद जिसमें एक खातून लड़की जो काम करे इसका नाम पवानी है जो तेलुगु मीडियम की है, उर्दू स्कूल के अंदर तेलुगु मीडियम की टीचर पीटी। उसके साथ साथ एडपल्ली के अंदर भी इसी तरीके से एडपल्ली के अंदर भी एक टीचर जो दोस्तों तेलुगु की है लड़की और उर्दू स्कूल के अंदर है। तो मैंने बताया साहब ऐसा कैसा ट्रांसफ़र करते हैं आप लोग, तेलुगु वालों को उर्दू में कैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उर्दू वालों को तेलुगु में करना चाहिए, आपको क्यों नहीं करते ऐसा? नहीं मेरे को नहीं मालूम है कब का है। तो मैं बताया साहब ये RTI के दोस्तों तमाम पेपर्स है ये, जिस पेपर्स में क्लियर मेंशन किया गया कि फलाना DSC में पास हुई सो लड़की फलाना जगह काम करती थी, इसका अपॉइंटमेंट दोस्तों इसको अपॉइंट करने के बाद इसका ट्रांसफ़र दोस्तों फलाना जगह किया गया। तो उन्होंने बोले सर मेरे को नहीं मालूम था। तो मैं बताया सब फिर क्या करना चाह रहे हैं आप इसके वास्ते? तो बताया कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, मैं देख लिया ना तमाम देख के इस पर कार्रवाई करूँगा। MEO को और सुपर स्पेशल ऑफिसर्स को डायरेक्टर को मैं इसको लिख के भेजाऊँगा। उसके बाद जो काम करना है आप हायर लेवल पे काम करिए, मैं मेरा काम करूँगा आपको बताया। दुबाका में बीजेपी की शानदार जीत को टीआरएस पार्टी के लिए जोरदार झटका करार देकर मुस्तकबिल में टीआरएस का नेमुल बदल सिर्फ बीजेपी ही होगा। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने जिला दफ्तर में मीडिया इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में फौजी की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के दौरान शहीद का दर्जा हासिल करने वाले रियाड़ा महेश को खिराज अकीदत पेश करके कहा कि इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और जिले में मौजूद पुलिस इंतजामिया की खराब कारकर्दगी पर नया वनंदी खातून के कत्ल में मुलविस मुजरिमीन को तहवील में न लेने पर बरहमी का इजहार करते हुए हाल ही में मुनक्किद करदा दुबाका इंतखाबात बीजेपी की शानदार जीत पर टीआरएस पार्टी को जोरदार झटका करार देते हुए टीआरएस पार्टी के कायदीन की जानिब से आम अफराद पर हमला करने के बावजूद भी पुलिस इंतजामिया की खामोशी माना खैज होने का इंकशाफ किया। ప్రాణాన్ని దేశం కోసం అర్పించి ఇవాళ ఇందూరు భగత్ సింగ్గా ఆయన చరిత్రలో ఎక్కడం జరిగింది। రాయడా మహేష్కి ఇవాళ కోమన్పల్లి గ్రామంలో వేల్పూర్ మండలం ఘన నివాళి మన జిల్లా నుంచి అనేక గ్రామాల నుంచి యువత ప్రత్యేకంగా అక్కడికి తరలి వచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది। వాళ్ళ తండ్రి గారితో కూడా నేను చాలా సమయం కూడా ఇవాళ మాట్లాడినప్పుడు తండ్రి బాధలో కూడా గర్వపడతా ఉన్నాడు ఆయన। ఇటువంటి కుటుంబం మన ప్రాంతంలో ఉండడం నిజంగా మనందరికీ కూడా గర్వకారణం। बिहार असम्बली इंतखाबात में 5 मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी पर जिला मजलिस की जानिब से शहर में जश्न का इनेकाद। बिहार असम्बली इंतखाबात में मजलिस को 5 नशिस्तों पर कामयाबी शानदार दर्ज करने की खुशी में जिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गुज़िश्ता शब शहर के इलाका नेहरू पार्क पर जश्न का एहतमाम किया गया और नेहरू पार्क था दफ्तर मजलिस तक बैक रैली निकालते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिसी फ्लो लीडर शहर सदर शकील फाजिल ने इस शानदार कामयाबी पर बिहार की आवाम का शुक्रिया अदा किया और इनके हमरा यहाँ की तशरीह मुहिम में शिरकत करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, हारून खान, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, अफसर बेग, एजाज हुसैन, सैयद रफीउद्दीन, सलीम के अलावा नौजवान मजलिसी कायद अजमत खान, अरफा, सोहेल व दीगर मौजूद थे। कहना चाहूँगा कि बिहार सीमांचल में अल्लाह ताला ने जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो इतनी बड़ी कामयाबी दी है
उसके लिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को निज़ामाबाद की आवाम की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ सीमांचल की आवाम खुसूसन उनके लिए मुबारकबाद और उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर यकीन किया। असद साहब जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब पर यकीन कर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यकीनन बिहार इलेक्शन में बादशाहगर का मौक़िफ़ रखती है। इंशाअल्लाह हम बहुत अच्छे काम खुसूसन सीमांचल में करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तेलंगाना में कोरोना के 1267 नए केसेस और 4 अमवात। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1267 नए केस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 4 अमवात वाक़ई हुई है। इस मुद्दत में 1831 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए। इस तरह पॉजिटिव केसेस से ज़्यादा सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद है। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक रियासत में पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 2,52,455 हो चुकी है, जबकि 2,32,490 अफराद सेहतयाब हुए हैं। 1,385 अफराद कोरोना से फौत हुए। गुज़िश्ता 2 दिनों में 42,490 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 576 का नतीजा आना बाकी है। हैदराबाद 201 नए केसेस के साथ सिरफहरिस्त रहा। रियासत के तमाम 32 अजला कोरोना की जद में है और 10 अजला में केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा दर्ज किया गया है। इजाफे में कोत्तागुडेम 85, जगतियाल 23, जंगांव 17, कामारेड्डी 23, करीमनगर 53, खम्मम 62, महबूबनगर 23, मंचियाल 32, मेदक 21, मलकाश्री 109, नागर कर्नूल 32, नलगोंडा 89, निजामाबाद 40 और भुंगेर में 24 केसेस मंजर-ए-आम पर है। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए महकमा सेहत तैयार, हर जिले में टेस्टिंग की सहूलत में इजाफा। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र का बयान। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि आने वाले महीनों में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए महकमा सेहत पूरी तरह तैयार है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर से मुतालिक अंदेशों पर वज़ीर सेहत राजेंद्र ने कहा कि केसेस में इजाफे से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर का आगाज किया गया है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह से एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस और क्लिनिक स्टाफ को चौकस किया गया है ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटा जाए। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हरीश वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीरा सेहत से कोरोना की दूसरी लहर के बारे में तबादला ख्याल किया। इन्होंने कहा कि रियासत में तमाम अजला, एरिया हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में RT-PCR और रैपिड टेस्ट की सहूलत फराहम की गई। इन्होंने कहा कि रियासत में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। हुकूमत ने वक्त ज़रूरत सरबराही के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक तैयार रखा है। वज़ीर सेहत ने मरकजी वज़ीर से अपील की है कि वो कोरोना वैक्सीन की तकसीम के सिलसिले में हुकूमत की रोड मैप से रियासतों को वाकिफ करवाएं। इन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन की तकसीम के सिलसिले में मरकज को रहनुमायाना खतूत मद्दन करना चाहिए ताकि ज्यादा मुतासरा रियासतों को तरजीह हासिल हो। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने मरकजी हुकूमत से रियासत को मजीद ताउन की अपील की। इन्होंने बताया कि तेलंगाना में अभी तक 48 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके, जिनमें से सिर्फ 5% पॉजिटिव पाए। इन्होंने कहा कि 25 लाख पॉजिटिव केसेस में 19,000 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अमवात की शरह 0.55% है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत रत्न के यौम पैदाइश के मद्देनजर कोटगीर मंडल के मुकाम पर तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल कॉलेज में प्रोग्राम मुनक्किद करने पर TRS पार्टी इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने शिरकत करके खराज अकीदत पेश की। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत रत्न की यौम पैदाइश के मद्देनजर कोटगीर मंडल के मुकाम पर तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक्किद करने पर तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने शिरकत करके इनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाकर खराज अकीदत पेश किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुजाहिदे आज़ादी के साथ पहले वज़ीर तालीम के ओहदे पर फायज होकर अहम तरीन खिदमात अंजाम देने का इजहार करते हुए कहा कि इसी को पेश नज़र रखकर रियासती वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना के माइनॉरिटी के लिए BC SC ST अकामती स्कूल को कायम किया गया। इन्होंने कहा कि CM KCR ने रियासती तेलंगाना की हल्के में अक़लियतों की काबिल लिहाज तादाद को मद्देनजर रखकर अक़लियती अकामती स्कूल कायम किया तो रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अक़लियती अकामती स्कूल और कॉलेज की मंजूरी अमल में लाने में अहम किरदार अदा करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच पत्ती लक्ष्मण, कोटगिर मंडल TRS पार्टी के सदर एजाज खान, मंडल AMC चेयरमैन गंगाधर इस्माइल, बिरकुर गंगाधर, आबिद, अमित खान, रफ़ी, नज़ीर, बाबू खान व दीगर ने शिरकत की। आरमूर में उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश की गई। आरमूर में उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में आरमूर डिवीज़न के उर्दू सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी सैयद ज़फ़र अली ने मुखातिब करते हुए कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बेहतरीन शख्सियत के हामिल थे। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाने के लिए इल्म जद्दोजहद की और सहाफ़ी की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। अपने अखबार व रिसाइल के ज़रिए आज़ादी की तहरीक में इनक़लाब बर्पा किया। इनकी इस अजीम जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। इस तरह इनकी यौम पैदाइश पर कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। इनकी खिदमात के पेश नज़र सरकारी तौर पर हिंदुस्तान के हर तालीमी इदारे व दफ्तर सरकारी यौम तालीम मनाया जाना चाहिए। इस तरह ये प्रोग्राम R&B गेस्ट हाउस आरमूर में मनाया गया। आज आरमूर उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई, जिसमें उर्दू सहाफ़ी मैं सैयद ज़फ़र अली, सहाफ़ी मोहम्मद सैफ अली, सहाफ़ी हामिद अली, अब्दुल नकीम और दीगर ने शिरकत की। मौलाना आज़ाद कांग्रेस भवन निजामाबाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट मोहम्मद इरफान अली की जानिब से प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों को शाल पोशी व मोमेंटो पेश किया गया। कांग्रेस भवन में आज दोपहर 2 बजे मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट मोहम्मद इरफान अली, टाउन सदर अब्दुल एजाज, अर्बन इंचार्ज निजामाबाद ताहिर बिन हमदान, सदर जिला कांग्रेस कमेटी मानला मोहन रेड्डी, सिटी कांग्रेस कमेटी केशवेनु, जनरल सेक्रेटरी रियासती कांग्रेस पार्टी गड़गू गंगाधर, सीनियर क़ायद जावेद अकरम, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद ईसा के अलावा अब्दुल कदीर, मोहम्मद फयाज के अलावा दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर सदर ज़िला मानला मोहन रेड्डी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर इनकी खिदमात पर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले वज़ीर तालीम और मुजाहिद आज़ादी माहिर तालीम थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों के मसाइल को उजागर करने में अहम रोल अदा किया और इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। ताहिर बिन हमदान, इंचार्ज असम्बली अर्बन निजामाबाद ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात पर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इनकी खिदमात आईने की तरह है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात को 11 नवंबर को याद करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इस मौके पर सदर माइनॉरिटी सेल इरफान अली ने मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब पर कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ादी में अहम रोल अदा किया और वो सहाफ़ी, मुफ़क्किर इस्लाम, दानिश्वर, अदीब, शायर, मुजाहिद आज़ादी और माहिर तालीम थे। हिंदुस्तान के जदीद तालीमी निज़ाम की बुनियाद इन्होंने रखी। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर ने नौजवान से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बिला मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात को लेकर चलने वाली जमात है। मौलाना आज़ाद की खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सहाफ़ियों को शालपोशी व गुलपोशी और मोमेंटो पेश किए गए। ज़िला सदर अक़लियती डिपार्टमेंट मोहम्मद इरफान अली ने सहाफ़ियों को शालपोशी मोमेंटो पेश करने के लिए कबल अज़ी इन्होंने साबिक़ा रियासती वज़ीर सुदर्शन, सदर ज़िला कांग्रेस कमेटी मानला मोहन रेड्डी, केशवेनु व दीगर से मुशावरत करने के बाद आज
प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों जिनमें मोहम्मद जावेद अली स्टाफ रिपोर्टर, मोहम्मद अब्दुल माजिद स्टाफ रिपोर्टर, मोहम्मद गौस एडिटर, सैयद असद मैनेजिंग डायरेक्टर आज का तेलंगाना, मोहम्मद अवैस खान एडिटर, खालिद खान एडिटर मोमिन टाइम्स, मोहम्मद अनवर खान एडिटर हलचल तेलंगाना, गफ्फार अहमद सहाफ़ी दक्कन, अहमद मुनसिफ स्टाफ रिपोर्टर, फ़िक्र जमहूर चीफ एडिटर सैयद उस्मान अली, अनवर दक्कन चीफ एडिटर सैयद यासिन अली, यूसुफ खान न्यूज़, जीशान रजवी रोशनी टीवी उर्दू तबसरा। रहनुमाए दक्कन के अलावा दीगर सहाफ़ियों को ज़बरदस्त तहनीत व शालपोशी और मोमेंटो भी दी गई। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट खालिद खान ने इरफान अली सदर ज़िला कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट से इज़हार तशक्कुर किया। आप लोग ये बताना चाह रहा हूँ, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब एजुकेशन के ऊपर जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो बनने के बाद पूरे इंडिया भर में कई यूनिवर्सिटीज़ लेके आए और वो पेशे से शायर भी थे और जर्नलिस्ट भी, बड़े जर्नलिस्ट भी थे और उन्होंने भारत रत्न से, फ्रीडम फाइटर भारत रत्न से नवाजा गया। और अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जब अंग्रेज़ों के साथ जंग में जेल में थे, जब वो उनके बीवी का इंतकाल हो गया था, जब अंग्रेज़ों ने उनको ज़मानत के लिए बाहर छोड़ने के लिए डिसाइड किया था, मगर उन्होंने अंग्रेज़ों को ज़मानत के लिए इनकार कर दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ऐसे थे और उनमें बहुत बड़ा जज्बा था एजुकेशन के ऊपर कि हमारी कौम पढ़ लिख के आगे बढ़ना, फ्यूचर एजुकेशन का बहुत अच्छा रहेगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ऐसा था। 132వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో దేశంలో మొట్టమొదటి విద్యాశాఖ మంత్రిగా ప్రాథమిక విద్యను ఉచితంగా అందించాలని అప్పటి ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ గారికి తెలియజేసి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనాథ వర్గాలకు, అన్ని వర్గాలకు కూడా ఉచితంగా ప్రాథమిక విద్యను అందించినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद गाరు। शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यौम पैदाशी हमेशा की तरह मनाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी में, हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल बाद हम सब बैठकर उनके बारे में कुछ बोलें, कुछ मालूम करें, उन्होंने जो कारनामे किए उसके बारे में आवाम में ले जाने के लिए जुर्रत करें, उसके लिए ही हम सब यहाँ पर आज मौजूद हैं। शहर के इलाका आटूनगर नजद मस्जिद सालेहीन के पास रहने वाले नौजवान सैयद अनवर गुज़िश्ता 7 दिन से लापता, अपने बच्चे को तलाश करने के लिए मजलूम मां की अपील। निजामाबाद के इलाका आटूनगर में मस्जिद सालेहीन के पास रहने वाले नौजवान सैयद अनवर, इस नौजवान पर अपने 3 बहनों व छोटे भाइयों की मुकम्मल जिम्मेदारी थी और लॉकडाउन में इनके वालिद जो फ्रूट मार्केट में मुलाजिम थे, इनका भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद इस नौजवान पर ही घर की मुकम्मल जिम्मेदारी थी। ये नौजवान जहनी बीमारी में भी मुब्तला था, जिसका इलाज जारी है। इन सब मुसीबतों के दौरान गुज़िश्ता 7 दिनों से ये नौजवान अपने घर को वापस नहीं आया और मुकामी 6 टाउन पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक जिसका कोई असर नहीं हुआ, जिस पर इस नौजवान के वालदा रोशनी टीवी के जरिए अवाम से अपील की कि वो इनके बच्चे का पता चलता है तो 9666452152 और 8897450619 नंबर पर इतला दे और इस नौजवान को घर तक पहुंचाने वाले अफराद को इनाम भी देने का इन्होंने ऐलान किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आटूनगर से बात कर रही, सैयद अनवर की अम्मी बात कर रही। मैं बच्चा हमारा 6 दिन से गया, अब तक पता नहीं है। जुम्मा के दिन निकला बाद नमाज के। जी आप लोग डिप्टी मेयर साहब से मदद करो हमारी, हम टाउन में 6 दिन से फिर रहे, हम लोग हमारी कोई बात नहीं सुनता है, हमारी मदद करो आप लोग। जिले के ओहदेदारों ने नवीपेट मंडल के बिनोला नागेपुर सोसाइटी के अहाते में कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान को दान खरीदारी के ताल्लुक से शौरबेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाया। नवीपेट मंडल के नवीपेट नागेपुर सोसाइटी के अहाते में जिला ओहदेदारों ने धान खरीदारी मराकज़ के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर को शौरबेदारी इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर आरडीओ रवि, डीसीओ सिंहाचलम, एडी संतोष ने शिरकत की। धान खरीदारी पर शौरबेदार करते हुए कहा कि कर्ता और
तिरगु के नाम पर किसानों को परेशान ना करे, इसको बर्खास्त करने के लिए तमाम जिले ओहदेदारान ने मिलकर किसानों को रास्त तौर पर शोर बेदार करने के लिए इजहार किया। इन्होंने कहा कि ज़रिए ओहदेदार की जानिब से तस्दीक शुदा धान की खरीदी अमल में लाकर 41 kg धान जखीरा खरीदा जाएगा। इसी तरह से छीनी हुई धान पर तरगु ना लेने के लिए कहते हुए लॉरी ड्राइवर और हमालियों को रकम ना देने के लिए कहा और मराकज़ खरीदी में इब्तदाई सहूलियात की फराहमी के साथ तफसीलात का बाकायदा इंदराज किया जाए। खरीदी गई धान की मुतालिका तफसीलात को फौरी टैब के जरिए ऑनलाइन दर्ज करते हुए किसानों को रकम की अदायगी के लिए इकदाम किए जाने का इंकशाफ करते हुए मौजा बिनोला के धान खरीदर मराकज़ का सरसरी तौर पर जायजा लिया गया और इनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस प्रोग्राम में बिनोला सोसाइटी चेयरमैन मगरी हनुमान, वाइस चेयरमैन बाबर और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर और किसानों ने शिरकत की। रेंजल मंडल में वाकई मुकामी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज एसआई नारायण सिंह ने मीडिया से इजलास का इनेकाद अमल में लाया। रेंजल मंडल में वाकई मुकामी पुलिस स्टेशन में इंचार्ज एसआई नारायण सिंह ने मीडिया से इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि दीपावली त्यौहार के मद्देनजर तमाम अफराद त्यौहार को अमन व सुकून के माहौल में मनाने के लिए हिदायत देते हुए कहा कि कुछ अफराद दीपावली त्यौहार के पेश नज़र दिगर मंडलों के मौज़ात में जुआ खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इनको मदद करने में शामिल अशखास पर भी केस दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने का इजहार करते हुए इन्होंने जुआ खेलने वालों की तफसीलात देने वाले अफराद के नाम राज में रखने का इंकशाफ किया। इसी तरह से मंडल में तहसीलदार की इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तौर पर रेत और मुरम की सरबराही करने में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर को सीज करके केस दर्ज करने का इंतबाह किया और किसी ज़रूरी काम की वजह से दूसरे गांव को जाने की नौबत आने पर करीबी पुलिस स्टेशन में इत्तला देने से आपकी घर के करीब पेट्रोलिंग करने का इजहार किया। लिहाजा तमाम अवाम पुलिस इंतजामिया की मदद करके दीपावली त्यौहार को जोश व खरोश से मनाने की अपील की। बुधन आरडीओ राजेश्वर ने साडापुर के धान खरीदारी मराकज़ का लिया जायजा। बुधन आरडीओ राजेश्वर ने साडापुर में वंदू की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का मुआयना करते हुए कहा कि किसानों को राहत पहुंचाने के मकसद के तहत हुकूमत तेलंगाना ने धान की खरीदारी के लिए मुतालिका मौज़ात में खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को बेहतर कीमत देकर खरीदने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ दिगर ओहदेदारान ने शिरकत की। रेंजल मंडलंलोनी रेंजल साटापूर మరియు అంబేద్కర్ నగర్ ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏడీ మార్కెటింగ్ గారితో కలిసి పరిశీలించడం జరిగింది। రైతులకు ఒకటి చెప్తున్నాం ఏంటంటే మనము శుభ్రమైన ధాన్యము ఆరబెట్టుకొని తీసుకొచ్చినట్టయితే ఎటువంటి కటింగ్ లేకుండా మిల్లర్ తీసుకుంటాడు। ఒకవేళ దానికి మనం ఏం చెప్తున్నామంటే 41 kg సంచి వెయిట్తో ఇంక్లూడింగ్ సంచి వెయిట్తో కలిపి 41 kg జోకాలని చెప్తున్నాం। తీసుకెళ్ళినట్టయితే మనకు ఏదైనా ట్రాన్స్పోర్ట్లో కనుక లేట్ ఎక్కడన్నా ఒక రోజు అటు ఇటు तुलबा दिलचस्पी व मेहनत से पढ़कर आला ओहदा हासिल करके मुस्तकबिल को शानदार बनाने के लिए दी हिदायत। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी की सदारत में चिटला प्रमीला जीवन राज मेमोरियल ट्रस्ट की निगरानी में जिला निजामाबाद के निखिल साई होटल में मुनाकिद करदा प्रोग्राम में आरमूर के ZPHS बॉयज स्कूल के 10वीं जमात के तुलबा को 10 पॉइंट हासिल करने वाले तुलबा को सोने का तमगा व नकद रकम दीगर किताबें तोहफे के तौर पर हवाले की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि ट्रस्ट की जानिब से कामयाब तुलबा की हौसला अफजाई की खातिर सोने का तमगा व नकद रकम देना काबिल तारीफ है। ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ ఉన్న పిల్లలకి ఈ ప్రోత్సాహాలు కూడా ఆనవాయితీగా పెట్టుకోవడం మీ అందరికీ తెలుసు। ఈ సంవత్సరం మరి కోవిడ్ రావడము, ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులు, ఒక దగ్గర పిల్లల్ని గ్యాదర్ చేయడం, పేరెంట్స్ని గ్యాదర్ చేయడం, టీచర్స్ని గ్యాదర్ చేయడం కాస్త ఇబ్బందిగా ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో ఒక సాకుతో నిజామాబాద్కి రావడం జరిగింది। సో ఆ సందర్భంగా ఒక స్కూల్ బస్, ప్రైవేట్ స్కూల్ బస్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ పిల్లలు వాళ్ళ హెచ్ఎం టీచర్స్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది। ముఖ్యమైన కారణం అంటే దాన్ని ఇంకా గట్టిగా పనిచేసింది సార్ అభివృద్ధి సెక్రటరీ ఉంది ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకుంది। సో అంత బిజీగా ఉండి కూడా ఈరోజు
ఈ పాఠశాలకు చదువుతున్న పాఠశాలకు గుర్తుపెట్టుకుని మరి ఆ పాఠశాల డెవలప్మెంట్లో పాల్గొనడం, విద్యార్థుల్ని ప్రోత్సహించడం నిజంగా అక్కడ చదువుతున్న విద్యార్థులు వారి యొక్క తల్లిదండ్రుల అదృష్టం సార్. తప్పకుండా నా వంతు సహాయంగా నేను వెంటనే అంటే ముందు కూడా చూసాను సార్, ఇప్పుడు వెంటనే ఒక 5 lakhs rupees అక్కడ వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్ కావచ్చు లేదా मुस्लिम वक्फ एंड प्रोडक्शन कमेटी को एक और कामयाबी, काजी खलील सराय की अराजी पर हो रहे तामीरी कामों को रोकने के लिए अहकाम जारी और इन्हीं की नुमाइंदगी पर कायदीन को नोटिस जारी। मुस्लिम वक्फ एंड प्रोडक्शन कमेटी शहर में मौजूद वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी दिनों से ही कोशां है और सदर हाफिज़ लईक खान की क़ियादत में कम अरसे में इन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की है, जहां जिला कलेक्ट्रेट की मस्जिद के लिए वक्फ बोर्ड मुतहरिक होते हुए जिला कलेक्टर को अहकाम जारी किया। वहीं दूसरी जानिब काजी खलील सराय के अराजी पर मौजूदा काबिज़ीन को तामीरी काम रोकने के लिए अहकाम जारी की गई और इनको नोटिस भी जारी की गई, जिसको आज अहदेदारों के हमरा सदर कमेटी हाफिज़ लईक खान अफजल ने हवाले किया। वाज़ेह है कि खाली अराजी पर तामीरी काम के आगाज के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और इस मौके पर इस तरह के नोटिस आना काफ़ी अभी राहत है। करो या वहाँ एडिशनल कलेक्टर साहब के आके देव बोले तो वो आके दिया नहीं दिया तो नहीं दिया, मोरम डाल दिया, अभी ये मग्गू डाल दिए, फिर उसके बाद वहाँ पर मोटर डाल दिए, बोर डाल दिए। कम से कम काम क्या है, डिपार्टमेंट को लाके पेश करना ना, वही हमारे ये पर है बोलते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें बताना चाहिए ना, कम से कम डॉक्यूमेंट बताएंगे उल्टा डिपार्टमेंट अभी बार बार उनको बोलते जा रहा हूँ काम करते जाए। अभी ये दूसरे चीज़ों पर तो एक सवाल होता है, अभी बने मुजाहिदे आज़ादी व आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर अवाम को इनकी हयात व जदोजहद से वाकिफ करवाने के लिए TJS पार्टी सिटी स्टूडेंट कन्वीनर मोहम्मद मजहर की जानिब से इनकी हयाती जिंदगी पर मुबनी वीडियो प्रोग्राम जारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 नवंबर के दिन मौलाना आज़ाद की पैदाइशी मौके पर मैं मोहम्मद मजहर सिटी स्टूडेंट विंग कन्वीनर TJS पार्टी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम हिंदुस्तानी यूथ को, ख़ास तौर पे यूथ को उनकी ज़िंदगी कैसी है और तालीमी वज़ीर कैसे बने और उनकी हिंदुस्तान की लड़ाई में जदोजहद और आज़ादी में उनका किस तरीके से किरदार रहा, इसके ऊपर मैं तमाम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स, तमाम स्कूल्स लेक्चरर्स, सार्स, तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस मौके पर आप अपने अल्फाज कह दीजिए, क्योंकि आपके अल्फाजों से कहीं लोगों को कुछ नसीहत मिल सकती, कहीं लोग इस पर अमल भी कर सकते हैं। सिटी स्टूडेंट विंग कन्वीनर जो आज मौलाना आज़ाद की पैदाइशी मौके पर कुछ अल्फाज मेरे हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूँ। मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी किस तरीके से पेश आई। मौलाना आज़ाद सिर्फ़ एक आज़ादी की लड़ाई में ही नहीं हुआ, मौलाना आज़ाद एक बहुत बड़े आलिम थे और मौलाना आज़ाद जब 1888 में पैदा हुए तो उन्होंने मक्के में उनकी पैदाइश हुई और 1890 में वो हिंदुस्तान आए मौलाना आज़ाद। उस वक्त से लेकर और हिंदुस्तान आज़ाद होने के वक्त तक मौलाना आज़ाद ने बहुत सारी अपनी खिदमत को इस मुल्क के लिए अंजाम दी। अपनी जान की परवाह नहीं, अपनी माल की परवाह नहीं। मौलाना आज़ाद इस मुल्क के लिए बहुत सारी मेहनतें अपनी जानों की कुर्बानियाँ तक पेश करे। मौलाना आज़ाद 1923 ईस्वी में सिर्फ जब वो 35 साल के थे, 35 साल की उम्र में एक वज़ीर तालीम बने। हिंदुस्तान की एक वज़ीर तालीम की हैसियत से उनको गांधी जी ने यह खिताब दिया था और सिर्फ वो एक ही बारी नहीं, ठीक 17 साल बाद भी मौलाना आज़ाद को दोबारा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर बात की थी और एक बार मौलाना आज़ाद को इस पोस्ट से, इस पद से नवाजा है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के और दूसरी बार भी वो हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम बने। मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी के बारे में हम अगर देखते हैं तो मौलाना आज़ाद एक ऐसी शख्सियत है जिनकी सारी ज़िंदगी सियासत के अंदर गुजरी और मौलाना आज़ाद ने जब सेकंड बार वो कांग्रेस की मीटिंग में थे, जब सेकंड बार उनको इस पद से नवाजा गया था, हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम की हैसियत से उनको जब नवाजा गया था, तो सेकंड बार जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो कांग्रेस के ऐसे कैंडिडेट थे
जहाँ कांग्रेस अगर अंधेरे में थी तो एक चिराग बनकर निकलते थे कांग्रेस के साथ, वो एक चिराग की शक्ल में हैसियत रखते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन आज अफसोस है कि वो लोग भी इनकी यादों को भुलाते जा रहे हैं। और जब दूसरी बार जब पद पे वो आए थे मौलाना आज़ाद, तो उन्होंने कहा था कि कुतुब मीनार पर अगर कोई अल्लाह का कोई फरिश्ता आकर मुझसे ये कहे कि हम तुमको आकर ये बोले कि हम तुमको हर वो चीज़ से नवाज देंगे, सिर्फ तुम हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करना छोड़ दो। अगर आप एकता की बात करना छोड़ देंगे तो हम आपको हर वो चीज़ से नवाज देंगे। तो मौलाना आज़ाद ने क्या खूब कहा, उस सवाल के बदले उस फरिश्ते को क्या जवाब दिया था, सुनो। फरिश्ते से मौलाना आज़ाद कहते हैं, उस फरिश्ते का अगर ऐसा जवाब आया तो मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा, ये मौलाना आज़ाद की सोच थी। तो मौलाना आज़ाद ने कहा, मुझे मालो ज़र की परवाह नहीं है, मेरे इस हिंदुस्तान की एकता को मैं बरकरार रखूँगा। ये मौलाना आज़ाद के अल्फाज थे। इस गुलिस्ता को मैं कभी बिखरना नहीं चाहता हूँ। इस 19 फरवरी 1958 में मौलाना आज़ाद की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तो उस वक्त उनसे मुलाकात करने के लिए, यानी 19 फरवरी 1958 में मौलाना आज़ाद अपने कमरे से जब बाहर निकले थे, उस वक्त वो गुस्ल खाने में उनका पैर स्लिप होने से उनको तकलीफ़ पहुंची थी। तो उस वक्त 22 फरवरी 1958 में जवाहरलाल नेहरू उनसे मुलाकात के लिए पहुंचते हैं। उनकी सेहत कैसी है मालूम करने के लिए जब पहुंचते हैं तो वो बेड पर सोए हुए रहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि मौलाना आपको ये क्या हो चुका है, मौलाना आप ऐसी हालत में हो चुके हैं, आज हमको बहुत अफसोस हो रहा है। तो उस टाइम मौलाना आज़ाद की कुछ आखिरी सांस बची हुई थी, तो अपने हाथ में हाथ रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में अपना मौलाना आज़ाद हाथ रख के ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान की एकता को कभी मिटने नहीं देना, इस हिंदुस्तान की एकता को, इस हिंदुस्तान के गुलदस्ते को कभी बिखरना नहीं। ऐसी मौलाना आज़ाद एक जवाहरलाल नेहरू को ऐसी एक जिम्मेदारी देकर चले गए थे। ये थी मौलाना आज़ाद की कुछ ज़िंदगी के बारे में। ऐसी तो इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहीद फौजी जवान महेश की फौजी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात। रियासती गवर्नर, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, असेंबली स्पीकर पोचाराम, MLC के कविता, जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर व जिले के अवाम ने पेश किया खिराज अकीदत। मुजाहिदे आज़ादी आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम तालीम व यौम अक़ीदत तक़रीब का ज़िले के किसी दफ्तर पर सरकारी तौर पर एहतमाम नहीं। मुस्लिम सियासी पार्टियों ने भी किया नज़रअंदाज, अफसोस सद अफसोस। साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने जिला महकमा तालीम में उर्दू के साथ हो रही नाइंसाफी व धांधलियों को मंजर-ए-आम पर आते हुए DEO से किया जवाब तलब व कार्रवाई का मुतालबा। जमाते दाऊ में 10 GPA हासिल करने वाले आरमूर बॉयज स्कूल के तुलबा को रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी और जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी मुबारकबाद। वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी को एक और कामयाबी, खलील सराय वक्फ अराजी पर काबिजीन को वक्फ बोर्ड से नोटिस जारी। जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से मुजाहिदे आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद व सहाफ़ियों को दी गई तहनीत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।